مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ جشن آمد رسول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ 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 جب کہ سرکار تشریف لانے لگے حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ اللہ دونوں عالم کے رسول اللہ اللہ جشن آمد رسول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ جم بارہویں کا چاند چمکا جشن ولادت آ گیا جشن ولادت آ گیا جشن ولادت آ گیا جشن ولادت آ گیا میرا نام برکت علی ہے۔ وسیم اتاری اور میں راول پنڈی ڈوکل ہان سے آیا ہوں۔ میرا نام سہیب اتاری، حامد علی اتاری، آزاد کشمیر سے۔ میرے دل میں بہت آس تھی کہ شہنشاہ کی زیارت کروں گا اور دعوت اسلامی میں بس تھوڑا سا پیچھے ہٹا ہوا تھا۔ جب میں ادھر آیا ہوں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میں مدینے میں آیا ہوا ہوں۔ ایسے دل کر رہا ہے کہ یہاں سے واپسی جائے بھی نہ، بس غفلت میں انسان زندگی گزار دیتا ہے، انسان کو پتہ نہیں لگتا جی بس دنیا داری بہت خطرناک چیز ہے۔ میری دلی خواہش ہے کہ میں یہاں سے بہت کچھ لے کے جاؤں اور نیک بن کے جاؤں۔ صبح ہلکے لگتے ہیں تو ہمیں وہ غسل کا طریقہ، نماز کے فرض وغیرہ سیکھنے کو ملے ہیں ابھی۔ بہرحال نماز درست کی ہم انشاءاللہ ہم یہی نیت لے کر جا رہے ہیں تحصیل خانپور میں۔ بچہ ہمارے جو نوجوان بھائی ہیں آئیں مدنی مذاکرے میں شرکت کریں، مدنی قافلے میں چلیں، کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ پیر صاحب نے کہا کہ 3 دن مجھے دے دو، انشاءاللہ نیت ہے کہ ہر منتھ جو ہے 3 دن انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ عزوجل۔ بابے کو دے دیا سے پہلے ٹی وی دے اتے ولا اساں اتھائی انہاں دا مرید تھی گیا سے ولا لوگ آدھے بلی اتھا مرید تھے ہو تو ساں اتھائی ونجنا پوسے بلی تاں وانتے مرید تھی سو تو ساں اساں دے سے چلو ٹھیک ہے بلی ویسوں تے ہی کڑو پہلے جرے نا درباریں تے اساں ویندے آسے وادن بلی جلو اتھائی مرید تھی سوں جلتے ولا اساں مرید میں دم کہنا تھی ساں میں بلی مرید میں ہوندا تھی ساں جرا میرا دل منے سے بلی واقعی اے جرے نا پیر ہیں ہنے دی بیعت تھیوں اساں دنیا دا ہی فائدہ تے آخرت دا ہی فائدہ ہے بس ولا ہن اساں نہیں چل پیوں پیر کو دے دیا سے پہلے ٹی وی دے اوتے مدنی چینل تے اساں دے دیا سے ولا چینل بے ہی ہوندے ان وچ لوگ آدھے بلی مدنی چینل کیوں جو دکان دا سسٹم ہوندے نا گاہ کم دیان بلی کئی بیا چینل لاؤ فلماں لاؤ ڈرامے لاؤ بلی میں دم نہ صرف مدنی چینل ولا کہیں آ کے یا تو ولا ہوئے نہ ٹی وی ولا جرے نا اساں صرف مدنی چینل کھڑایا سے جا میں سارے چینل کٹوا تے صرف مدنی چینل بچا کھڑیا ہوں ولا اساں اتھاں مرید تے تھی ویندے آسے ولا لوگ آدھن ویلی اتھاں کیویں مرید بندا تیندے میں کہ جرے بابا لائف بیٹھے ہوندن اساں ہوں جلے مرید تھی ویندو آدھے مرید تھیو ویلی ولا جویں پڑھدے ان ویندے اساں اویں پیچھے پڑھدے آسے انہیں کہنا ویلی اڈیں کراچی ونجنا پوسے تا کو جرے بابے دے نا کہنے ویلی اڈیں ہی ویندے پیوں قافلہ آمدا وے دو ساڈیاں بساں ہیں تے میں ولا کام چھوڑ دیتے میں کہ جرے بابے دے ویندے پیو تے میں تے تواڈے نال ہاں اے تے میں کہ کڈوں تے سکھدا ودا میں کوئی یاد ہی کنا ویلی قافلہ ویندا پے ہن جرے آکھے نے ولا میں دکان چھوڑ دیتے میں نہیں آ گیا ولا اساں بیٹھے آسے ذرا پیر صاحب جرے نا سامنے نہ نظر دے بیان وہ ٹی وی تے نظر دے میں کہ ایو تا کوئی جو اساں گھر دیکھ دے اسے ویلی میں کہ سامنے باں کئی جا دے اوتے جتھاں بابا میرے کو سامنے نظر ہیں ولا میں اتھاں سائڈ کڑوان بیٹا اتھاں بابے کو ڈٹھا بیٹا اسپیشل یہی 12 ربیع الاول کے سلسلے میں اور باپا کی زیارت کرنے آئے ہیں الحمدللہ دکھ اس چیز کا ہے کہ اتنے سال لگ گئے آنے میں دوبارہ کئی دفعہ مساجد میں آگے پیچھے کہیں بھی چاہنے کے باوجود رونا نہیں آتا تھا لیکن جب یہاں آئے آج تیسرا دن ہے جس ٹائم بھی مدنی مذاکرہ شروع ہوتا ہے پیر صاحب کو دیکھتے ہیں تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں اس سے سمجھ آتا ہے کہ واقعی انسان اللہ والوں کی صحبت میں آتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ باپا جان کی جب یاد آتی ہے دل
तड़प उठता है। मेरी प्यारे बापा जान की बारगाह में अर्ज है, मैंने नियत की हुई है, मेरा बच्चा मदरसातुल मदीना में हिफ्ज़ कर रहा है, 2 मेरे बेटे हैं और 2 बेटी हैं। बापा जान उन्हें कबूल कर ले, वो आलिम दीन बन जाए, और कोई ख्वाहिश नहीं मेरी, मेरे बच्चे बस बापा की नजर में आ जाए, बापा जान उन्हें कबूल कर ले, बस मेरी यही ख्वाहिश है, और जिंदगी की कोई ख्वाहिश नहीं है मेरी। आज रवानगी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पीर साहब के बारगाह में हाजिरी थी। तो फर्स्ट टाइम आया तो ना, जिस वक्त मैं इंटर हो रहा था ना अंदर प्यारे भाई, जिस बंदे की कैफियत ऐसी होती है कि बंदा बयान भी नहीं कर सकता ना, मेरे साथ वो हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस वक्त का माहौल में आया ना, पता ही नहीं था नमाजों के हवाले से, दाढ़ी शरीफ के हवाले से, ऐसे ही क्लीन शेव रहते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त के माहौल में आए ना, पापा जाने के घर में मुश्किलात भी अल्हम्दुलिल्लाह हल हो रही है, इज्तिमा भी हाजिरियां हो रही है, मदनी मुज़ाकरों में भी हो रही है, दीन का काम करने की हिम्मत मिली है। पहले तो पता ही नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना, दुनिया में आने का मकसद क्या हमारा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त के माहौल में आए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे से आगे जा रहे हैं, दुनिया के हवाले से भी और दीन के हवाले से भी। पहले दुनिया में भी कमजोर थे, दीन में भी कमजोर थे, दिल तो करता है इधर ही रहे, पक्के पक्के इधर ही रहे, लेकिन फिर मजबूरियां होती हैं, बंदे को जाना पड़ता है, वहां भी तो काम करना है ना दीन का। उधर भी हमारे इस्लामी भाई है, हमारे जैसे दोस्त है, हमने उनकी भी तो इस्लाह करनी है ना, अपनी तो फिर हमने बर्बादी है। माशाअल्लाह मुल्क, और अब तो कुछ बैरून मुल्क से भी कुछ मुलाकात हुई कि माशाअल्लाह यहाँ पर जश्न विलादत की खुशियाँ मनाने आ रहे हैं, और ये बड़ी खुशाइन बात है उन इस्लामी भाइयों के लिए जो यहाँ के जदवल के मुताबिक जब शिरकत करते हैं, तो इनके खुद ही हम तासुरात सुन रहे हैं कि कई ऐसी बातें जो इन्होंने नहीं सीखी थी वो यहाँ सीखने का मौका मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कई शहरों से इस्लामी भाई आ रहे हैं, मदनी चैनल के नाजरीन भी देख ही रहे हैं, सुन रहे हैं, मौका हो तो ज़रूर मैदान मदीना आ जाएं, 3 दिन के लिए 12वीं शरीफ तक रुक जाएं, तो इंशाअल्लाह और भी बहुत कुछ पाएंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। एक इब्तिदाई जो हमें आज मौजू मिला है उसमें आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आज जैसे शब जुमा है और कल रोज़े जुमा होगा, तो जुमा के दिन हमें मस्जिद कब जाना चाहिए, बयान में या खुतबे के वक्त या नमाज के वक्त? क्योंकि एक तादाद है जो खुतबा जब स्टार्ट होता है उस वक्त भाग भाग कर मस्जिद पहुंच रहे होते हैं, तो जुमा का दिन हमारी हाजिरी मस्जिद में किस वक्त हो, किस तरह हो, इस बारे में भी हमारी कुछ रहनुमाई फरमाएं। फरिश्ते रजिस्टर लेकर दरवाजे पर तशरीफ फरमा होते हैं, जो जो इंटर होता है जुम्मा की नमाज के लिए उसके नाम इंटर करते रहते हैं, रजिस्टर में लिखते रहते हैं। जब खतीब खुतबे के लिए मंबर पर आ जाता है तब वो दफ्तर लपेट देते हैं, अब रजिस्टर में एंट्री नहीं फरमाते। तो यूं खुतबे से पहले तो आना ही है, अलबत्ता जितना जल्दी आएंगे उतना जगह आगे मिलेगी, वरना अगर लेट आएंगे, लोग सफ़ों में बैठ गए, आप उनके कंधे फलांग कर जा रहे हैं, तो ये तो इसकी शरीयत में इजाजत नहीं है कि ऐसा नहीं करना है। जो इस तरह जुम्मे को कंधे फलांगता है वो उसको जहन्नमियों का पुल बनाया जाएगा, जहन्नमी उसको रोंद कर चलेंगे जहन्नम में जाने के लिए। ये भी एहतियात करनी है, और जितना जल्दी हो सके आना। बयान हो रहा है वो भी हमारे लिए ही है, वो बयान भी सुनना, इसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जबकि कोई आलिम दीन बयान कर रहा हो उसको सुनना चाहिए। जल्दी जल्दी जुम्मे में आ जाएं ताकि जल्दी जल्दी नेकियों का ढेर लगना शुरू हो जाए। जुम्मे की एक नेकी आम दिनों की 70 नेकियों के बराबर है, 70 नेकियों के बराबर है, और एक गुनाह ये भी 70 गुनाह है, यानी 70 गुनाह के
बराबर है। तो यूं जुम्मे को ज्यादा नेकियों की तरफ रगबत होनी चाहिए, गुनाहों से तो हमेशा ही बचना है। जुम्मे को भी खास करके ज्यादा यानी कि जोर लगा दे आदमी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि और दिनों में कोई बात नहीं चलती है, नहीं नहीं। कोई छोटा सा गुनाह भी जहन्नम में अगर फेंक दे तो बंदा करेगा क्या? क्योंकि छोटा गुनाह भी जो करेगा ना, सबसे छोटा गुनाह, उस पर भी जहन्नम के अजाब का इस्तेहकाक है, हकदारी है। तो हो सकता है इसी वजह से उसको जहन्नम में डाल दिया जाए। अल्लाह करीम हमें नेकियों का हरीस बनाए, नेकियों का हमें लालच पैदा हो जाए और गुनाहों से नफरत हो जाए। आमीन। बिजाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। जब कभी दाखिल मस्जिद होने की सआदत पाए, इतिकाफ की नियत जरूर फरमाएं। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। दिल ही में नियत कर लीजिए मैं इतिकाफ से हूँ, आप मुअतकिफ हो गए। दिल में नियत होते हुए जबान से भी दोहरा लेना ज्यादा अच्छा है। चाहे अपनी मादरी जबान ही में कह लें कि मैंने सुन्नत इतिकाफ की नियत की। याद रखिए, मस्जिद में खाना पीना, सोना, सहरी, इफ्तार, आबे जमजम शरीफ पीना, दम क्या हो पानी पीना वगैरह उसी सूरत में जायज होते हैं, जबकि पहले से इतिकाफ की नियत की हुई थी। मस्जिद में आ गए, इतिकाफ की नियत नहीं की थी और अब खाना पीना या सोने का मामला पेश आया तो ये कर नहीं सकते। अलबत्ता इतिकाफ की नियत भी इस काम के लिए नहीं कर सकते, सवाब के लिए कर सकते हैं, तो सवाब की नियत से कर लीजिए। और इसके बाद कुछ जिक्र और दुरूद कर लीजिए, 12 मरतबा चाहे तो दुरूद पाक पढ़ लें। अब खाने पीने सोने वगैरह में हरज नहीं। आज 1443 सीने हिजरी के रबीउल अव्वल शरीफ की 8वीं रात है। इस निस्बत से ज़ियाए दुरूद सलाम पेज नंबर 3 से फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 8 पेश करता हूं। जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता, और जो मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता, और जो मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह पाक उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है कि ये निफाक और जहन्नम की आग से आजाद है, और उसे बरोज़ क़यामत शुहदा के साथ रखेगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। चांद रात से अल्हम्दुलिल्लाह चांद रात से मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला जारी है। आलमी मदनी मरकज में और मदनी चैनल पर लाइव देखा जाता है। और सवाल कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी सवाब दे पाऊं ये जरूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाए। मुझे आए बाएं शाएं करता अपने मौके पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
امیر علیہ سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ جس طرح عید میلاد النبی کے دنوں میں یہ ربیع الاول میں خصوصاً جوش جذبہ ہوتا ہے نیکی کی طرف دل، تو اس کو عمل کے سانچے میں کیسے ڈالا جائے؟ کوئی مدنی پھول ارشاد فرما دے کہ 12 مہینے ہی کے لیے آقا کی محبت مرحبا یا مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ ہم نیکیوں پر بھی کاربند رہیں اور استقامت بھی ملے، اور میرے اور میرے گھر والوں کے لیے دعائے مغفرت فرما دیجیے۔ یغفر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب۔ اللہ اللہ، نیکیاں تو کرتے رہنے سے ہی استقامت مل سکتی ہے، خالی چاہنے سے کیسے مل جائیں گی؟ درخت پر پھل لٹک رہا ہے اور آپ چاہیں کہ میں یہ حاصل کروں، لیکن یہ کہ نہ میں ہاتھ بڑھاؤں نہ توڑوں نہ کوئی اس کی کوشش کروں، تو یہ خود بخود گر کر میرے پاس آ جائے، منہ میں داخل ہو جائے، ظاہر یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے جد و جہد کرنی ہوگی۔ السعی منی والاتمام من اللہ، یہ محاورہ ہے عربی کہ کوشش میری طرف سے ہوگی، تکمیل پاک پروردگار کی طرف سے ہوگی، تو اللہ پاک پورا کر دے گا۔ ہم کوشش کرنے والے بنے، من جدہ وجدہ، جس نے جد و جہد کی یعنی کوشش کی اس نے پا لیا۔ تو کوشش کرنے سے استقامت ملنے کی امید تو ہے، اب کوشش ہی نہ کرے، خالی بولے کہ یار استقامت ملتی نہیں، چھوڑو یار، اس استقامت ملتی، جب تک سیریس نہیں لیں گے نا کہ مجھے یہ کرنا یہ کرنا ہے، تو پھر استقامت ملے گی۔ روز 3 ٹائم کھانا ہے، تو کھانے کے ٹائم پہ کوئی یاد نہیں دلاتا، خود ہی یاد آ جاتا ہے، بھوک بھی لگ جاتی ہے، یاد بھی آ جاتا ہے، کھاتے بھی ہیں۔ 3 تو میں نے کہا، ویسے ہی 4-5 ٹائم ہو جاتا ہوگا کھانا، تو ریفریشمنٹ کے نام پر، تو کبھی کوئی دوست آ گیا تو اس کا ساتھ دینے کے نام پر، تو کبھی ویسے موڈ ہو گیا تو اس پر کچھ نہ کچھ وہ آنا جانا جاری رہتا ہے پیٹ میں۔ تو اسی طرح اگر نیکیوں کا سلسلہ بھی جاری رہے نا، تو پھر یہ کہ جاری رہے گا تو انشاءاللہ استقامت بھی مل جائے گی۔ اللہ ہم سبھی کو استقامت دے۔ مثلا کسی نے کچھ درود شریف اپنے ذمے لے لیے، 313 لے لیے، یہ پڑھتا رہے، اب ناغا نہ ہو، اگر پڑھتا ہی رہے تو عادت پڑ جائے گی۔ یہ چلتے پھرتے خامخواہ نوٹ بند کر کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جا رہے ہیں، تو یہ ذہن بنا لے گا میں نے درود شریف پڑھنا ہے، پھر بھول جائیں، پھر یاد آ جائے پھر شروع کر دیں، پھر بھول جائیں پھر یاد آئے تو شروع کر دیں، انشاءاللہ اس کی بھی عادت پڑ جائے گی۔ تو یہ کہ کوشش کرنے سے ہوگا، بغیر کوشش کے صرف چاہ لینے سے نہیں ہوگا۔ میں بہت پرانی اپنی بات ترغیب کے لیے عرض کر رہا ہوں، دعوت اسلامی نہیں شروع نہیں ہوئی تھی، میں چاہتا تھا کہ میں مطلب درود شریف پڑھوں، تو اب مجھے کسی نے کبھی پان کھا لیا ہوگا اکا دکا تو دیکھ لیا، تو اسلامی بھائیوں نے تحفہ دینا شروع کر دیا۔ اسلامی بھائی کی اصطلاح نہیں تھی، لیکن اس وقت بھی میرے ارد گرد کچھ نہ کچھ دوست احباب رہتے تھے دعوت اسلامی سے پہلے بھی۔ اب میں پان کھاؤں اتنی دیر درود پاک نہ پڑھ سکوں تو مجھے یوں تشویش ہوئی کہ تو میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، تو پھر میں نے وہ پان کھانا ہی ترکنے ہوئے میں نے چھوڑ دیا ہے۔ میں پان سے کان پکڑ لیا، میں نے کہا ایسا پان کھا کر کیا کروں میں تو مجھے درود پاک نہ پڑھنے دے، ذکر اللہ سے میرے روک لے، میری زبان کو لگام ڈال دے، ویسی لگام نہیں ڈلوانی۔ تو ایک میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح مطلب اگر ذہن ہوگا نا کہ مجھے فالتو نہیں رہنا ہے، جب کوئی کام نہیں ہے، مطالعہ بھی نہیں کر رہے، تو پھر خالی یوں منہ بند کر کے بیٹھے رہنا، یہ اپنی ڈکشنری میں نہ ہو کہ ہر سانس ہمارا انمول ہے، قیمتی کہتے ہیں، قیمتی وہ ہوتا ہے جو کچھ قیمت سے مل جائے، بڑی قیمت سے مل جائے، انمول ہو کہ جو کسی قیمت سے نہ ملے۔ تو سانس انمول ہے، یہ کسی قیمت سے نہیں ملتا، ایک سانس لے لیا گیا، اب قیامت تک یہ پلٹ کر ہمارے پاس نہیں آنا، اس نے چاہے اربوں خربوں روپے خرچ کر دے کوئی کہ میرا گیا ہوا سانس آ جائے، وہ نہیں ملتا، چلا گیا، ہماری زندگی میں سے مائنس ہو گیا۔ تو یہ سانسوں کی گنتی ہم پوری کر رہے ہیں، ہر سانس موت کی طرف ہمارا ایک قدم ہے جو ہمیں کھینچے لیے جا رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری عمر بڑی ہو گئی، اب تو اتنے سال کے ہم ہو گئے، ارے میرے بھولے والے بھائی، اتنے سال ہماری عمر میں سے مائنس ہو گئے۔ آپ کے بچے کی بھائی 3 سال کا میرا بچہ ہو گیا ہے، 3 سال کی سالگرہ، تیسری سالگرہ،
वो मोमबत्तियां जला रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं और म्यूजिक चला रहे हैं। अरे अल्लाह के बंदे, 3 साल आपके बच्चे की उम्र के माइनस हो गए, कम हो गए, ये किसी कीमत से अब पता वापस नहीं आएंगे। यानी क्या मतलब उछल कूद मचा रहा है और गुनाह कर रहा है, गाने बजा रहा है। करना तो नेकी कर, सालगिरह मना, तिलावत हो, नात शरीफ हो, कुरान खानी हो, नेक लोग जमा हो, आपके यहाँ आकर खाना खाएं, दुआएं खैर करें, भले अजीजों को जमा करें पर्दे की रियायत के साथ, ऐन शरीयत के मुताबिक। तब यूं सालगिरह मना है, किसने मना किया? ऐसी खुशी ना हो कि जो गफलत में डाले बल्कि जहन्नम की तरफ धकेले हमें। इस तरह खुशी बनाने का अंदाज नहीं होना चाहिए। तो अपना जज्बा होगा इंशाअल्लाहुल करीम, इस्तिकामत कहीं नहीं जाती इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हुजूर, ये सवाल है कि जब कई बार नातख्वां कलाम के लिए खड़े होते हैं तो उनके दिल में रिया की नियत नहीं होती कि दिखावा करें ये वगैरह, लेकिन चंद जब वो पढ़ता है और जब बंदे उसके नात पर झूमने लगते हैं तो अंदर से अंदर कैफियत बन रही होती है, फिर उसका जहन आता है कि नहीं ये रियाकारी हो जाएगी और फिर वो फौरी तौर पर अपना जहन बदलता है। तो क्या ये भी रियाकारी में शामिल हो जाएगा? बराए करम इस्लाह फरमाए। अब अपना जहाँ इख्तियार ही नहीं है तो रिया का ख्याल तो सबको आता है आमतौर पे, तो इख्तियार नहीं है उसको आदमी दफा करता है, दूर करता है। खुद रियाकारी का अपना जहन बनाता नहीं है कि यानी ये इसका जहन नहीं बन जाता कि मैं ये करूं नेकी, ये इबादत, ताकि लोगों के दिल में मेरी इज्जत बने, मेरी इज्जत बने या मुझे पैसे दें। ये पैसे जो लेना भी है ना, ये भी रिया की डेफिनेशन में आएगा, ये भी रियाकारी है, क्योंकि वो यानी नात शरीफ पर पैसे लेना ये हराम है। तो यानी उजरत के तौर पर जो लिया जाता है, चाहे अंडरस्टूड दे ना हो मगर अंडरस्टूड हो कि देगा लेगा, ये अंडरस्टूड को शायद सब समझते होंगे कमोबेश। तो ये भी रिया है कि रिया की डेफिनेशन आप जहन में बना लें तो आपको बहुत जगह काम आएगी। और ये जानना फर्ज है, फर्ज उलूम में से। जब रिया किसको बोले, नाम तो सुना बचपन से, ये होती क्या है यही पता नहीं तो बचेंगे कैसे? तो रिया की डेफिनेशन, रिया की तारीफ ये है कि इबादत से लोगों के दिलों में मकाम बनाना, इज्जत बनाना मकसूद हो, या उनसे माल हासिल करना ये मकसूद हो। यानी माल के लिए या इज्जत पाने के लिए कि इज्जत मिले मुझे, इसलिए ये अपनी नेकी जाहिर कर रहा है, अपनी इबादत जाहिर कर रहा है। ये है रिया। इबादत करने के बाद भी जाहिर किया इसलिए कि लोगों की, जब भाई आप तहज्जुद पढ़ते हैं, अब आपको देखता कौन है? 4 दीवारी में ही है ना, घर में। लेकिन आप बताते हैं लोगों को इतने अरसे से मेरी एक भी तहज्जुद नहीं गई, मैं तो शाबान, रजब, शाबान 2 महीने और रमजान 3 महीने का हर साल रोजे रखता हूं। अब ये क्यों बता रहे हैं हम? अगर इसलिए बता रहे कि लोग बोले अच्छा वो बड़ा नेक आदमी है माशाअल्लाह, है ना, आपको तो पगार मिल गया, आप उसके दिल में इज्जत, मकसूद ये हो, वैसे बताने में हर्ज नहीं है, मगर मकसूद ये कि लोगों के दिलों में इज्जत पैदा हो। इसलिए ये तहज्जुद, या मैं इतने दुरूद पढ़ता हूँ, या दलाइल खैरात शरीफ पढ़ता हूँ, या इतने नवाफिल पढ़ता हूँ, इशराक चास नहीं छोड़ता, तो अवाबिन नहीं छोड़ता, तो मदनी काफिला नहीं छोड़ता। तो अगर ये सब इसलिए बता रहा है, या जो भी इबादत इसलिए बता रहा है कि जिसको बता रहा है उसके दिल में मेरी इज्जत पैदा हो, ये तब रिया है। वैसे ही बता रहा है किसी और मकसद को, अच्छा मकसद है तो सवाब मिलेगा, जैसे लोगों की तरगीब के लिए बताता है, और 100% इसमें ये दुरुस्त भी है, अपना दिल मुतमईन है, तो ये सवाब का हकदार है। ये नीयत पर दारो मदार है। तो या तो इसलिए बता रहा है कि मतलब ये इज्जत बने, इबादत अपनी इसलिए जाहिर कर रहा है, या इसलिए जाहिर कर रहा है कि पैसे मिले, तोहफे के नाम पर ही सही कुछ मिले, माल मिले दुनिया का, ये भी रियाकारी है। और इतनी बड़ी तबाहकार है रियाकारी, अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए। बचना बड़ा दुश्वार है इससे कि चूंटी की चाल से भी बारीक चाल से चलकर वो दाखिल हो जाती है इबादत में, आदमी को समझ नहीं पड़ती। इल्म भी नहीं है ना, इल्म हो तब भी आदमी भूल कर सकता है,
शैतान बुलावा दे देता है, लेकिन ये कि जिसको इल्म नहीं है तो उसका बचना तो बहुत मुश्किल है। तो ये मतलब रियाकार की इतनी बड़ी शामत है कि कल क़यामत में इसके लिए इस तरह के अलकाब होंगे, मसलन ओ रियाकार, ओ मक्कार, ओ धोखेबाज, इस तरह उसको पुकार पड़ेगी। आप बताइए कि आज वैसे अकेले में भी कोई कह दे रियाकार तो कितना बुरा लगेगा, इसका मुंह नोच डालू। और अगर उन दोस्तों के सामने जिनमें अपना थोड़ा यूं इमेज है बना हुआ है, उसमें कोई आकर धोखेबाज और मक्कार ये कोई बोल दे हमको, जबान ना खींच ले, कैसा गुस्सा है कि फायर कर दे इसको। ये कितना ये हमको मतलब बुरा लगेगा और परेशानी होगी। तो अब क़यामत के दिन जब मखलूक के सामने पुकारा जाएगा, ओ रियाकार, ओ मक्कार, मक्कार माने धोखेबाज, ओ मक्कार, वो अय्यार, अय्यार भी धोखेबाज को कहते हैं। तो क्या कैफियत, ना वक्त इंतकाब ले सकेंगे, ना बोलकर भड़ास निकाल सकेंगे, कुछ भी नहीं होगा। इतनी जिल्लत होगी, जो हमारे हाथ चूम रहे थे, हमारी हमसे इज्जत कर रहे थे, दुआ का बोल देते कि मौलाना दुआ करना, बच्चा बीमार है, इन सबको जब पता चलेगा तो दिखावे के लिए कर रहा था, हम तो इसको नेक समझे थे। आप बताइए कितनी रुसवाई होगी बरोज़े महशर। और ये भी है कि रियाकार को ये कहा जाएगा कि जा अपना बदला उससे ले जिसके लिए तू अमल करता था, खुदा के लिए तो किया नहीं है। उस वक्त भी कितनी रुसवाई होगी, जिसको दिखाने के लिए, जिसके दिल में इज्जत डालने के लिए हमने ये दिखावा किया, तो हमको मतलब यानी कि उसने तो कुछ नहीं दिया, ना उसने देना है, खाली बहुत बहुत तो तारीफ कर देगा, दो अल्फाज बोल देगा, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इससे ना पेट भरेगा ना पीठ, अगर दुखती है तो दुरुस्त होगी, कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय इतना ये बोल देगा। भूल भुलैया लोगों के वैसे हज़्म आप जैसा कमजोर हैं, भूल जाएगा तारीफ करने वाला भी। अगर भूल भी ना जाए, सोने से भी हमको नहला देना, तब भी अमल नेक अमल इसलिए दिखाना माल मिले या खुदा की कसम बहुत बड़ा नुकसान है, आखिरत में तबाहकार है। तो इसलिए बहुत सोच समझ कर अमल भी करना है और रियाकारी से हर सूरत में बचना है। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए। ये कुरान करीम में इरशाद होता है, पारा 12 सूरह हूद आयत नंबर 15, मा काना युरीदुल हयातद दुन्या व ज़ीनतहा नुवफ़्फ़ी इलैहिम अअमालहुम फ़ीहा व हुम फ़ीहा ला युबख़सून। तर्जमा कंज़ुल ईमान, जो दुनिया की जिंदगी और आराइश चाहता हो, हम उसमें उनका पूरा फल दे देंगे और उसमें कमी ना देंगे। हज़रत सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि रियाकारों को दुनिया में ही उनकी नेकियों का बदला दे दिया जाता है और उन पर जर्रा भर जुल्म नहीं किया जाता। यानी दुनिया में बदला दिया, आखिरत में फिर बचा। रियाकारियों से बचा या इलाही, बना मुझको मुखलिस, बना या इलाही। दावत इस्लामी के शायती इदारे मकतबतुल मदीना की 166 पेज पर मुश्तमिल किताब रियाकारी, पेज नंबर 16 पर है। ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक उस अमल को कबूल नहीं करता जिसमें राई के दाने के बराबर भी रिया यानी दिखावा हो। एक और फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक ने हर रियाकार पर जन्नत हराम कर दी है। इसकी इस सिलसिले में लिखा है कि जो ईमान के साथ दुनिया से, यह हदीस तो पूरी हुई, आशिकान रसूल, जो ईमान के साथ दुनिया से जाए, अल्लाह पाक चाहे तो बेहिसाब बख्शा जाए, अगर वो चाहे तो सजा देकर जन्नत में दाखिल फरमाए। लिहाजा रियाकार पर जन्नत हराम है कि शरहा बयान करते हुए हजरत अल्लामा मोहम्मद अब्दुल रऊफ मुनावी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं, यानी रियाकार मुसलमान इब्तिदान यानी शुरू में
जन्नत में दाखिल न होगा। तो अल्लाह पाक बस हमारे लिए इखलास का खजाना का मुंह खोल दे। हम लोग बहुत यानी कि हकदार, यानी क्या कहना चाहिए, तलबगार हैं कि हमारे किसी अमल में इखलास शायद ही होता हो। मुंह मन पर दिखावा दिखावा, हर मामले में दिखावा। अल्लाह पाक रहम करे, कोशिश करते रहे। और रियाकारी ये किताब छोटी सी है, मकतबतुल मदीना की, इसको पढ़ें तो इंशाअल्लाह बहुत सीखने को मिलेगा। एक हिकायत, एक स्टोरी लिखी है इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि ने कि बसरा में, अब ये देखो इमाम गजाली से पहले का वाकया है जो इमाम गजाली ने लिखा। इमाम गजाली 5वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद थे, यानी ये समझो कि ये 1000 साल से भी पुराना वाकया है जो मैं बयान करने लगा हूँ। लिखा है कि बसरा, ये इराक का मशहूर शहर है बसरा। बसरा के गली कूचों में जब सुबह के वक्त गुजरते ना, सुबह सादिक से पहले और तहज्जुद के टाइम पर, तो हर घर से रोने की आवाज आती थी, दुआएं लोग रो रो कर मांग रहे होते। और लेकिन वो इबादतों का दौर था। तो किसी आलिम साहब ने वो किताब लिखी रियाकारी के उन्वान पर, जिसमें रियाकारी की बारीकियां, कि रिया कैसे अमल में दाखिल होता है, ये लिखा। तो ये किताब जब आम हुई ना, तो बसरे की गली से रोने धोने की आवाजें बंद हो गई। तो किसी ने कहा कि काश इन्होंने किताब ना लिखी होती, ये लोग रोते थे धोते थे तो बड़ा सुरूर रूहानियत महसूस होती थी, सब बंद हो गया। लोग एकदम घबरा गए। वो खौफे खुदा वाले हैं। हम लोग तो वो है कि एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दी। मैं कोई रियाकार थोड़ी हूँ, तो रियाकारों को समझाया जा रहा है जैसे मैंने तो जन्नत लिखवा ली है पहले से ही। हमारी हालत ही है। हालांकि रियाकारी की मालूमात ही नहीं है हमको कि कैसे आता है, अपने अमल में कैसे दाखिल हो जाता है। अल्लाह पाक खुलूस अता फरमाए, इखलास अता फरमाए। आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। मेरा सवाल आपसे ये जो शेर है, या नबी बस मदीने का गम चाहिए और कुछ ना खुदा की कसम चाहिए, इसमें और कुछ ना खुदा की कसम चाहिए, और हमें और कुछ भी चाहिए होगा और हमने कसम खा ली तो अब क्या करें, इरशाद फरमाए। या नबी बस मदीने का गम चाहिए और कुछ ना खुदा की कसम चाहिए। तो ये अशार होते हैं ना, ये बहुत जामे होते हैं, बाज़ औक़ात कि माना बड़े वसी होते हैं। इन्हें या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मदीने का गम मिल गया। अच्छा, मदीने का गम क्यों मांग रहे? कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत है। इसका मतलब या रसूलल्लाह आपका गम मिल गया, आपका सच्चा इश्क मिल गया, इश्क का एकदम गलबा हो जाए बहुत ज्यादा, कि वो इश्क जो है गम से बदल जाए। तो अगर आपका गम मुझे मिल गया तो चूंकि जिसको आपका गम मिलता है उसका ईमान भी सलामत हो जाए, उसके नज़ाक में भी आसानी, उसकी कब्र में भी अजाब से राहत, जन्नत का बाग बनेगी कब्र, और वो जन्नतुल फिरदौस में दाखिल भी हो जाएगा। तो यूं या रसूल अल्लाह, या नबी, या बस मदीने का गम चाहिए, या नबी बस मदीने का गम चाहिए और कुछ ना खुदा की कसम चाहिए, कि जब ये मुझे हकीकत में मिल जाएगा तो फिर मुझे किसी चीज की जरूरत ही नहीं रहेगी। आप भी मिल गए, आपका खुदा भी मिल गया, कब्र भी जन्नत का बाग बनी, जन्नत में दाखिला भी हो जाएगा, महशर में भी आपके दामन में पनाह मिल जाएगी, अर्श का साया मिल जाएगा, सभी कुछ तो मिल जाएगा। अगर मुझे मदीने का गम मिल जाए तो बस ये दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। इससे ये मुराद है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम, अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कहा जाता है कि सैयद किसी का मुरीद नहीं हो सकता, क्या ये सच है या नहीं? इस्लाह फरमाए। कहते हैं कि ये खुद पीर हैं, ये कैसे मुरीद हो सकते हैं? हाय सबसे बड़े पीर तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मुर्शिद। अगरचे आम इस्तिलाह में पीर मुर्शिद हम लोग बोलते नहीं है, लेकिन ये हकीकत है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सबसे बड़े पीर साहब है, सबसे बड़े मुर्शिद है। जो भी अहले इल्म होगा उसकी समझ में आएगा। अवाम को शायद ताज्जुब हो गई क्या बोलता है, मैं सही बोलता है। तो मुर्शिद मारे हिदायत देने वाला, हिदायत का रास्ता दिखाने वाला। तो अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर भी कोई हिदायत का रास्ता दिखाने वाला है या होगा? तो यूं मुर्शिद है हमारे। अच्छा, ये कादरी सिलसिला जैसे है तो हजरत अली से चला, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से। तो मौला अली ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरीद, मौला अली के मुरीद इमाम हुसैन, इमाम हुसैन के मुरीद इमाम ज़ैनुल आबिदीन। तो ये खिलाफत का सिलसिला यूं चला है। तो यूं मतलब ये कि ये सारे चलते रहे, गौस पाक तक पहुंचा ये सिलसिला, फिर ये बढ़ते बढ़ते आला हज़रत तक पहुंचा। तो यूं हम लोग कादरी जैसे हैं, तो इसमें कई सैयद आए जो एक दूसरे के मुरीद थे। बड़े बड़े उलमा किराम जो हैं वो सैयदों के, यानी सैयद जो होते हैं वो मुरीद होते हैं, गैर सैयदों के मुरीद होते हैं। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह सैयद नहीं थे, सैयद नहीं थे। इनके मुरीद सैयद, इनके खुलफा सैयद, खासकर जो हयात आला हजरत लिखी है ना जिन्होंने, हजरत सैयद जफरुद्दीन, मुफ्ती सैयद जफरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह सैयद थे। हयात आला हजरत लिखी है, आला हजरत खलीफा थे, मुफ्ती थे। और इन्होंने तो अरबी में किताबें लिखी है, सहीहुल बिहारी, सहीहुल बिहारी भी लिखी है। और अपने इनके वो फतावा का भी मजमुआ है, फतावा मलिकुल उलमा, शिफा शरीफ की शराह भी लिखी है इन्होंने, शिफा शरीफ की शराह भी लिखी है। और ये सैयद थे और आला हजरत जो गैर सैयद हैं इनके मुरीद थे। तो ये अफवाहें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब यानी कि सैयद जो हो उसको मुरीद नहीं बनना चाहिए, या सैयद खुद पीर है। ठीक है, उस सैयद की अपनी शान है, पीर भी नहीं, वो बादशाह है, लेकिन पीरी मुरीदी में इसके अपने शराइत हैं। अब सैयद है एक बात है, और इमामत का वो अहल नहीं है, उसमें ये शराइत पाए नहीं जाते कि वो इमामत कर सके। तो क्या आप मुसल्ले पे खड़ा करेंगे, नमाज पढ़ेंगे उसके पीछे? नहीं। तो इमाम तो बनाते नहीं, और हर सैयद को पीर बनाने के लिए तैयार हो गए। हर एक का अपना अपना मनसब है। सैयद एक निस्बत की वजह से उसका मनसब है। लेकिन ये आपको मसला बता दूंगा, ये किसी से भी पूछ लेना। एक तरफ सैयद हैं, क्या साहब हैं, सैयद हैं, लेकिन वो आलिम नहीं है। और एक तरफ एक आलिम दीन है जो सैयद नहीं है। दोनों में ये आलिम दीन अफसल है उस सैयद साहब से। जाकर किसी से पूछ ले, अहले इल्म मेरी तायद करेगा। अवाम हो सकता है कि नाराज भी हो, लेकिन जो मसला मैंने अर्ज किया, तो हम बेशक हम सैयदों का भी एहतराम करते हैं, और जितना दावत इस्लाम वाले एहतराम करते हैं कोई क्या करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सारे हम उलमा का भी एहतराम करते हैं। तो उलमा का मर्तबा गैर सैयद आलिम से बढ़कर है। ये फतवा रज़विया में लिखा है, अपनी तरफ से थोड़ी कह रहा हूँ, ये मसाइल नहीं है। तो बहरहाल लेकिन ना इमामत आप देंगे, अगर वो अहल नहीं अजान का, अजान भी नहीं दे सकेंगे, तो हर एक, मगर उनकी निस्बत की हम ताज़ीम करेंगे। आपको शेव ने सैयद साहब, क्या आप उनको इमामत के लिए खड़ा कर दोगे? हाँ नहीं यार, ये तो नहीं हो सकता। तो फिर पीर भी तो कैसे बनाओगे? अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह सैयदों के सदके मेरी बेहिसाब मग़फ़िरत करे, इनके नाना जान की शफ़ाअत नसीब फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुद सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये सैयदना अबू सईद मुबारक बिन अली मखज़ूमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मुरीद थे, और वो सैयद नहीं थे। और इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाहि तआला अलैह, इमाम अली रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बाद सैयदना मारूफ़ी करख़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह,
یہ جو سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، یہ تقریباً ان میں وہ افراد ہیں کہ جو نسب کے اعتبار سے سادات اکرام میں سے نہیں تھے۔ سید ایوب علی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک بزرگ ہوئے لاہور میں، یہ بھی اعلیٰ حضرت کے مرید تھے، سید تھے۔ کئی کتابوں پہ ان کا نام لکھا، پہلے تو ہوتا تھا لکھا ہوا نام، اعلیٰ حضرت کی کتابوں پر تمام سید ایوب علی شاہ صاحب۔ میں ان کے گھر گیا ہوں لاہور میں، ان کا خاندان ہے، ان کی یعنی کہ اولاد جو ہے یہ مجھے لے گئے تھے اپنے گھر پہ۔ ہم لوگ سید ایوب علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور کے نواز سے لے گئے تھے مجھے، اور غالباً سید صاحب جو تھے سید ایوب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زوجہ محترمہ حیات تھی، بالکل بوڑھی تھی، اور مجھے ان کے نواسوں نے کہا تھا سید شاہد شاہ صاحب وغیرہ، انہوں نے فرمایا تھا کہ ہماری نانی آپ کو یاد کرتی ہیں۔ دعوت اسلامی کا ایک وہاں سلسلہ شروع ہوا نا، میں ان کے گھر گیا تھا، اب وہ یہ یاد نہیں پڑتا کہ وہ نانی کی زیارت کی ہے نہیں، کہ مجھے اب یاد نہیں ہے۔ ان کے گھر ضرور گیا تھا میں، سید ایوب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو یہ سادات کا گھرانہ، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اعلیٰ حضرت کے یہ سب، یعنی کہ یہ دوسرے بچوں نے تو اعلیٰ حضرت کی زیارت نہیں کی تھی، لیکن وہ تو ہے نا سید ایوب علی۔ تو یہ کوئی حرج نہیں اس میں، غیر سید کا مرید ہونا کوئی حرج نہیں ہے۔ پیر جامع شرائط ہے تو سید اس کا مرید بن سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک سوال ایس ایم ایس کے ذریعے کہ اگر کسی سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور وہ معافی مانگنے کے باوجود معاف نہیں کرتا تو کیا کرنا چاہیے؟ معاف کر دینا چاہیے۔ اسی میں بھلائی ہے کہ حدیث پاک میں کہ اگر تیرا بھائی، جس کے پاس اس کا بھائی معافی لے کر جانے معافی مانگے، تو اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو حوض کوثر پر آنا نہ ملے گا۔ معاف کر دینا چاہیے، بڑا دل رکھنا چاہیے۔ معاف نہ کر کے بھی ہم کیا بگاڑ لیں گے اس کا یار؟ ظاہر ہے کچھ نہیں بگڑے گا۔ معاف کریں گے تو ہم کو ثواب ملے گا، کہ ہم بندوں کو معاف کریں گے رب ہم کو معاف کر دے گا۔ ہماری کتنی خود غلطی ہے، کتنے گناہ کیے، تو اس بندے کی اگر ایک دو غلطی ہم کو کوئی بات بری لگ گئی، ٹھیک ہے لگ جاتی ہے بری، تو ہم اس ایک بات کو پکڑ کے بیٹھے، یہ دو باتوں کو پکڑ کے بیٹھے کہ مجھے یوں بولا تھا، میرا یوں کیا تھا، مجھے تو اس طرح مطلب یہ کہ ہم نے اللہ پاک کی کتنی نافرمانی کی ہے۔ کون سا دن، کون سی گھڑی، کون سا گھنٹہ ایسا ہے جس میں ہم اللہ پاک کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچ کر نکل جاتے ہیں؟ کتنے گناہ کر رہے ہیں، پھر بھی وہ رب کریم نہ ہماری روزی روکتا ہے، نہ ہمارا پانی روکتا ہے۔ خدا کی قسم اگر چند منٹ کے لیے ہم سے ہوا ہی روک لے کہ یہ سب نافرمان ہے، ہوا روک لے، لاشوں کے ڈھیر ہو جائے، تو وہ ہماری ہوا بھی نہیں روکتا، سانس ہمارا جاری ہے۔ آکسیجن اگر رک جائے تو ہم تو سب ختم ہو جائے۔ یہ رب کریم، اور بن مانگے یہ نعمتیں وہ ہیں، سانس اور یہ پانی بن مانگے ہی تو عطا ہو رہی ہے، بارش بن مانگے ہی دے رہا ہے، وہ غلہ اگ رہا ہے زمین سے بن مانگے عطا ہو رہا ہے، کتنی نعمتیں وہ دے رہا ہے۔ ہم گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، وہ عطا پر عطا کیے جا رہا ہے۔ اتنا بڑا پروردگار، کرم والا پروردگار، سب سے بڑا پروردگار ہم پر اتنا رحم و کرم کر، ہم یار ایسے مطلب تنگ دل ہیں کہ خطا ہو گئی بندے، ٹھیک ہے چھوٹی نہ تو بڑی، صحیح بڑی خطا ہو گئی، تو ہم سے تو پھر بھی جتنی خطائیں ہم نے کی اتنی تو اس نے نہیں کی ہمارے معاملے میں، ایک دو ہی کی ہے، تین چار کی ہے۔ تو بڑا دل رکھو یار، لڑائے معاف کرو، اپنا دل صاف کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اور یہ کرنا تھا کہ اچھی صحبت کے حوالے سے بھی باپا نے فرمایا نا، کہ پھر اچھی صحبت میں جانے کا من تو خود کرتا ہے، لیکن پھر اچھی صحبت میں جب چلا جاتا بندہ تو پھر من کچھ اور کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے کیا کرے بندہ کہ اچھی صحبت بھی نہ چھوڑ سکے، اس کی اچھی صحبت کی استقامت مل جائے۔ بخار آیا ہوگا کبھی آپ کو؟ بخار میں کوئنین کی گولیاں پہلے تو آتی تھی، پتہ نہیں اب آتی کہ نہیں، ایسے کڑوی ہوتی تھی، کھانی پڑتی تھی، آ رہا ہے تو ذہن بن جاتا تھا کہ یہ کھائیں گے تو بخار اترے گا، کھاتے تھے بخار اتر جاتا تھا۔ تو یوں کہ اچھی صحبت میں من بھلے ہوتا ہے، یہ بھی اچھی بات ہے کہ چلو دل تو ہوتا ہے،
दिल लगता नहीं है। तो दिल होना ये गुड साइन, और दिल ना लगना ये शैतान। शैतान समझता है कि ये अच्छी सोबत में रहेगा तो मेरे हाथ से निकल जाएगा, ये नमाजी बन जाएगा, ये नेकियां करने वाला बन जाएगा, ये सुन्नतों पर अमल करने वाला बन जाएगा। तो इसलिए वो शैतान जो है ना, ये तो अपनी तो शैतान से तो कभी सुलह हो ही नहीं सकते ना, नो कॉम्प्रोमाइज। शैतान जो बोले उसको हमको, शैतान उल्टा बोलेगा हम वो सीधा करेंगे। मैं बोलने वाला जो वो बोले इसका उलट करें, ये उलट नहीं, सीधा करेंगे हम, वो उल्टा बोलेगा शैतान। तो इंशाल्लाह काम बन जाएगा। दिल है ना, दिल लगे। दवा किसको भावती है? मरीज होता है गोलियां खाता है, इंजेक्शन, बेचारे मरीज ऐसे ऐसे होते हैं, इंजेक्शन कोई जगह बाजू का बाकी नहीं रहती। जो बड़े मरीज होते हैं खतरनाक बीमारियों में, फिर भी वो इधर इंजेक्शन लगाएंगे, उधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे। नस का इंजेक्शन लगाने बेचारों को जगह नहीं रहती कि कहाँ लगाए, लेकिन वो लगाए जा रहे होते डॉक्टर इंजेक्शन। और ये भी सब्र का जाम घट घटा कर पड़ा होता है, खानदान वाले भी कुछ नहीं बोलते, करने तो बचाओ। ये कि इलाज, तो इसलिए इलाज इसी तरह होगा कि हम सीरियस लेंगे, दिल लगे ना लगे हम पड़े रहेंगे अच्छी सोबत में, तो आज नहीं तो कल दिल लग ही जाएगा। हम करें तो सही इलाज, अब दवाई ना पिए बोले खुतबों को ठीक हो जाए तो ये थोड़ा मुश्किल है ना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। प्यारे बाबा जान, आपकी बारगाह में अर्ज है कि जैसा आप रियाकारी के हवाले से बता रहे हैं, तो बाज़-औक़ात ये बातें सुनकर जब हमें कोई भी सामने वाला इस्लामी भाई नेकी इतनी बताता है तो हमारे दिल में ये ख्याल आ रहा होता है कि रियाकारी कर रहा है। तो अब सामने वाला शख्स अपने आप को किस तरह बचाए उसकी बदगुमानी से, इसकी भी ज़रा इस्लाह फरमा दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। मुसलमान के कौलो फ़ेल को अच्छे गुमान पर, अच्छे मायना पर हमल करना, अच्छी उसकी तावील निकालना, ये वाजिब है। यानी कि जब कोई अमल जाहिर कर रहा है अपना, उसमें पहलू निकल रहे हैं अच्छे, कि ये हो सकता है कि अल्लाह पाक की नेमत का शुक्र अदा कर रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ इतने इतने दिन से। ये हो सकता है कि अल्लाह का शुक्र अदा करने के तौर पर ही हम पर इज़हार कर रहा हूँ कि अल्लाह की नेमत का वो चर्चा कर रहा है, अल्लाह ने मुझे नेमत अता की, उसके करोड़ा करोड़ एहसान। और इसके दिल में ये गोशे ख्याल में भी नहीं है कि मैं इसके दिल में मेरी इज्जत में बना रहा हूँ, ना पैसे इससे मुझे कोई बटोरने। ये एक सूरत ये है। दूसरा ये कि तरगीब दिलाने के लिए, मसलन उस्ताद है अपने शागिर्दों से कहता है कि मैं तहज्जुद नहीं छोड़ता, और उसकी नीयत ये था कि उस शागिर्द होते उस्ताद की पैरवी करते हैं, या पीर कहता है तो मुरीद उसकी पैरवी करते हैं, इमाम साहब कहते हैं तो मुक्तदी उसकी पैरवी करते हैं। इस तरह कोई इस तरह का शख्स कहता है, या माँ बाप अपनी औलाद को कहते हैं, तो इसमें अच्छे पहलू मौजूद है। इसी तरह दोस्त दोस्त को कहता है, तब भी अच्छे पहलू मौजूद है। तो अच्छे पहलुओं के मौजूद होते हुए हम हरू भरू उसको खामा खाका वो रियाकार बना दें तो बदगुमानी हराम है, बदगुमानी ये हराम है। तो इसलिए बदगुमानी से बचना भी जरूरी है। हम बदगुमानी करके काय को गुनाहगार हो? अगर खुदा न खास्ता वो रियाकार है भी तो उसका और उसके परवरदिगार का मामला है, मेरा आपके हाथ में केस नहीं है कि हम इसका फैसला करेंगे, क्योंकि रिया का ताल्लुक दिल से, रिया बातिनी अमराज में से, ये नजर नहीं आता। जब तक ये बोलेगा नहीं हमको पता कैसे चलेगा कि रिया कर रहा है? हमारे पास कौन सा आला है कि हम इससे देख लेंगे दिल के अंदर, स्कैनिंग कर लेंगे इसकी? तो इसलिए कोई अगर अच्छा अमल भले मतलब 1000 बार बता रहा है, हमको कोई इख्तियार नहीं कि हम इसको रियाकार बोले। हम उसने जन का पहलू ढूंढे और सवाब कमाए। हुस्न जन्न मिन हुस्निल इबादत, ये हदीस पाक है कि अच्छा ख्याल लाना, ये किसी के बारे में अच्छा ख्याल, अच्छा गुमान लाना, ये अच्छी इबादत से है। हम सवाब कमाए। या शेख अपनी अपनी देख, वो अपना करे हम अपना करें, भले वो बोलता रहे।
ये बहुत नाजुक मामला है, ये सही है, सवाल बहुत मौके का आया कि ये बदगुमानी हो सकती है इसमें कि ये रियाकारी कर रहा है, जबकि वो बेचारा रियाकार ना भी हो तब भी हमारे पास तो कोई आला नहीं है ना, हम उसको खुदा पर छोड़, जो जिसका हम उसके लिए भी दुआ करें, अल्लाह उसको भी बख्शे, उसके सदके हमको भी बख्शे। और ये जो बता रहा है तो हम उससे रगबत लेकर चाहिए, यूं यूं कर रहा है तो मैं भी यूं यूं करूं, ये भी करें, हम यही कर लें, इसमें हमारा फायदा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिलाल महमूद फेसबुक पेज पर सवाल कर रहे हैं कि रबीउल अव्वल में झंडा लगाना कैसा, और अगर ना उतारा तो गुनाह मिलेगा, और कौन सा झंडा लगाना अफजल है? ये झंडा हमारे यहाँ राइज है, इस वक्त दावत इस्लामी के माहौल में राइज है, और तकरीबन अब सुन्नियों के यहाँ झंडा ये इस्तेमाल हो रहा है, दूसरे भी सब्ज झंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, लिखे हुए झंडे भी इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन हम मतलब लिखे हुए से मैं तो समझाता रहता हूँ कि ये बाद में कोताही हो जाती है, और फिर वो जमीन पर तशरीफ लाना, हवा से उसका क्या बोलूं मैं, मेरा कपड़ा जैसे हवा में ले रहा था तो फट जाएगा। अब ये मुकद्दस झंडा, तो इसका अदब होना चाहिए, तो इसलिए वो अपने 12 दिन पूरे हो गए, 13वें दिन इसको उतार के लपेट के रख दे, वरना क्या धूप हवा, रंग भी इसका हो सकता है कि हवा चूम 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 कर अपने अंदर जज्ब कर ले, आइंदा आप बोलो यार ये तो कलर नया लाओ, तो ये आपको काम भी आएगा। तो इस तरह आपके पैसों की भी बचत है, अदब भी इसी में कि हम इसको बाद में अगर लहराते भी रहे तो कोई इसकी तरफ अवाम भी तवज्जो नहीं करेंगे, ये इन दिनों तवज्जो करते हैं, बाद में झालरें भी लगी रहेंगी बिला वजह, तो वो बत्ती जलती रहेगी, लेकिन वो जश्न विलादत वाली कशिश उसमें कैसे आएगी? 12 दिन पूरे हो गए तो वो मतलब अब ये सब उतार लेना चाहिए। अब आया ये झंडा नहीं उतारेंगे तो ये मैं इसको गुनाहगार मैं नहीं कह सकता, बाज़ों का तवज्जो भी नहीं होती या लोग नहीं उतारते, तो यूं मज़ारों पे भी झंडे लगा देते हैं, पर फिर साल के आखिर में झंडा कहाँ, डंडा का डंडा खाली रहता है, झंडा नहीं रहता। थोड़े दिन में झंडा जो है, कपड़ा भी थोड़ा इतना मजबूत हर एक लेता होगा, तो झंडे भी, मज़ारों के भी झंडे जो है उर्स पे फिर तब्दील होते हैं, जो भी होता है, अगर कुछ रह गया तो उतार के उसको तब्दील हो जाता है, वरना फिर हवा ले जाती है इसको, बारिश धो लेती है, इसलिए उतार लेना चाहिए इसको, मशवरा यही है। माल की भी बचत है, अदब भी है, वरना फिर बाद में वो आइंदा साल रहेगा तो काम आएगा ना, इसलिए अभी रखेंगे तो काम आएगा इंशाअल्लाह। ये सबको मेरी दरखास्त है कि जितना जल्दी हो सके 12 रबीउल अव्वल शरीफ तशरीफ ले जाए, तो झंडा महफूज जगह पर तशरीफ ले आए, फिर आइंदा साल ये खुले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। और अब तक जिन्होंने झंडा लगाया नहीं उनको क्या कहेंगे आप? दरखास्त आप भी लगाएं, हमारे साथ खुशियों में शरीक हो जाएंगे, ये भी खुशी के इजहार का एक तरीका है। सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये नहीं कि जो झंडा नहीं लगाता कि इसको हम कोई फतवा लगा दें कि ये यूं है तो ये वो है, तो नहीं, दुनिया भर में थोड़ी राइज है, हमारे यहाँ ये राइज है। और वो अरब दुनिया में, इराक शरीफ में वो क्या लिखा होता है, मोहम्मद कुदवतुना, मोहम्मद कुदवतुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मुझे उस वक्त पता चला कि किसी ने, अरब साहब ने मुझे तोहफे में भेजा था इराक में, वो गए होंगे ना इस टाइम भाई, तो वहाँ दिया। तो अब तो खैर क्लिप देखे मैंने, उसमें लगे होते हैं, जश्न विलादत का भी अभी चला था, सजावट का। मोहम्मद कुदवतुना माने हमारे सरदार जी, हमारे पेशवा, हमारे पेशवा, हमारे सरदार। जियारत की थी मैंने, वहाँ जियारत की थी, जगह जगह लगे हुए थे झंडे, लगे हुए होते हैं। मोहम्मद कुदवतुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इससे तो वो लिखा हुआ, इसलिए मेरा अपनी जगह पर जो भी तहफ्फुज़ात मैंने पेश किए वो बाकी है, अंडरस्टूड है कि वहां भी हवा तो चलती है, बारिश भी आती है, धूप भी झूम झूम के चुमती है, तो अब इनको मैं मशवरा देने जरा कि क्या करना है, दावत ऐसा भी समझ में आती है, वहां भी ये लगा लो, इसमें क्या आ रहे हैं। ये सब्ज गुम्बद, इससे किसी को इख्तिलाफ नहीं है, किसी मुसलमान को सब्ज गुम्बद से इख्तिलाफ नहीं है सरकार के रोजे से, ठीक है ना। ये गोश्त पाक, तो गोश्त पाक को सारे सिलसिले वाले मानते हैं, नक्शबंदी, चिश्ती, सोहरवर्दी, कादरी
कि तो ये पेशवा वैसे भी है, लेकिन सारे वलियों के सरदार है ना, कुतुब अकबर है। तो ये रंग इनका है, ये एक अल्लाह के नेक बंदे और वलीउल्लाह का रंग है, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का। तो सारे वलियों को हम तो मानते हैं ना, ये थोड़ी कि भाई इन औलिया को, भाई पाकिस्तान में जो औलिया हैं ये हमारे, हिंद में औलिया हैं वो तुम्हारे, इराक में औलिया हैं उनके, नहीं नहीं, रूए जमीन पर जितने औलिया हुए और होंगे हम सबको मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारे माहौल के हिसाब से हमने ये रंग डाला है, तो इसको कबूल कर लें तो मेहरबानी आपकी, ना करें तब भी मेहरबानी, दे उसका भी भला ना दे उसका भी भला। माशाल्लाह बांग्लादेश में तो परचम लहरा रहे हैं आज, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ शामिल है माशाल्लाह। अब देखो बांग्ला जबान उर्दू जबान में फर्क है ना, लेकिन ये लहरा रही है, इनकी समझ में आता है। तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, आला से आला नबी का झंडा, रहमतों वाला नबी का झंडा, अज़मतों वाला नबी का झंडा, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, घर घर से लहराओ, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। हम माहे मीलाद में लहराएंगे झंडे हरे, हम माहे मीलाद में लहराएंगे झंडे हरे, सारी गलियां रोशनी से जगमगाते जाएंगे, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पुकारो रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। हम माहे मीलाद में लहराएंगे झंडे हरे, हम माहे मीलाद में लहराएंगे झंडे हरे, सारी गलियां रोशनी से जगमगाते जाएंगे, सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, शब अबरार की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, नूर की आमद मरहबा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। ये मदनी चैनल वालों के पास होगा झंडा, अभी हाल क्लिप भी चला था कि वहाँ सजावटें हुई हैं तो झंडे, तो अगर कोई सा मोहम्मद कुदवतुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परचम हो तो जरा दिखा दें, तो नाजरीन के लिए भी एक तकवीयत ईमान का बाइस होगा इंशाअल्लाह। ये हमें कुछ मिले हैं हाँ। सईद गौसे आजम के दरबार शरीफ के, जी जी, बगदाद शरीफ में लगते हैं, जी जी, इराक शरीफ में, दिखाते हैं, यमन शरीफ में भी लगते हैं, वहाँ पता नहीं कौन से यही लगते हैं या कौन से लगते हैं। यमन शरीफ में धूमधाम से जश्न विलादत मनाते हैं, इतना बड़ा इनका, मतलब मैंने क्लिप देखे ना, इतना बड़ा इज्तिमाई मिलाद होता है कि मुझे तो खुशफहमी थी कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा होता है, अब शायद ये लगता है कि यमन में हमसे भी बड़ा इज्तिमाई मिलाद होता हो, इतनी मखलूक, इतनी मखलूक। बेरूत में भी बापा बहुत धूमधाम के साथ होता था, नहीं वहाँ गलियां देखी थी, पूरी पूरी गलियां झंडियों से सजी हुई होती थी, अल्लाह झंडे लगे होते थे उसमें। है दुनिया भर में प्यारे आका का जश्न है, चारों तरफ धूमधाम, धूम है अत्तार, धूम है अत्तार, अरसू शाह के मिलाद का, झूम कर तुम भी पुकारो, झूम कर तुम भी पुकारो, पुकारता हूँ, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। धूम है अत्तार हर सो शाह के मिलाद की, धूम है अत्तार हर सो शाह के मिलाद की,
کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا سالار کی آمد مرحبا لجپال کی آمد مرحبا بلکار کی آمد مرحبا دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی جھوم کر تم بھی پکارو جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ. یہ ماشاءاللہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں محمد قدوتنا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہاں غوث پاک کا دربار ہے غالباً ہے نا جی جی ماشاءاللہ. یہ میں تو پہلے بہت سال پہلے تو ابھی اب کافی اس میں لگتا ہے کہ توسیع ہو گئی ہے بناوٹ تبدیل ہے. سبحان اللہ. یہ جھنڈے لگے ہوئے غوث پاک کے مزار پر جشن ولادت کے. مرحبا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو امیر سنت یہ بتائیے کہ یہ 3 کلر والا جو جھنڈا ہے یہ دعوت اسلامی میں کب سے رائج ہوا ہے؟ یہ چند سال ہوئے میرا خیال 4-5 سال ہوئے ہوں گے زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے زیادہ 5-6 سال ہوئے ہوں گے. اب تو ماشاءاللہ یہ رائج ہو گیا. اب تو بازار و جھنڈا بازار میں شاید یہی بک رہے ہوں گے اور بھی بک رہے ہوں گے لیکن یہ سب سے زیادہ شاید چلتے ہوں گے. نالے پاک بھی وہاں نقشے نالے پاک بھی بہت بکتے ہیں. یہ مدنی چینل پر دیکھا تو پتا چلا طرح طرح کے نالے پاک کی نقش جو ہے وہاں اس بازار میں چل رہے ہوتے ہیں جھنڈے چل رہے ہوتے ہیں. یہ سب الحمدللہ یہ خدمت اللہ پاک نے دعوت اسلامی سے خوب خدمت لی. نقش نالے پاک بھی خوب عام ہوا. دعوت اسلامی نے اس کو ایجاد نہیں کیا. یہ تو ہم نے تو دعوت اسلامی سے بہت پہلے سے دیکھا ہوا ہے نالے پاک کا نقش اور پتہ بھی تھا اور ادب بھی کرتے تھے اس کا. لیکن یہ اس طرح کے میٹل کے اور نہیں دیکھے تھے. وہ چھپا ہوا نقش ملتا تھا اور وہ فریم کرا کے گھروں میں لگایا جاتا تھا. اب الحمدللہ عام ہو گیا بہت عام ہو گیا. اس کی اللہ برکت نصیب فرمائے. اس کی فضیلت نقش نالے پاک کی کہ اگر جس کسی مال میں رکھ دیا جائے گا تو چور چوری نہیں کر سکے گا. ایک فضیلت یہ بھی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے بابا جان آپ کو ربیع الاول مبارک ہو. یا اللہ میرے بابا کو پیش دے. آمین. نور والا آیا ہے نور لیتے آیا ہے سارے عالم تو دیکھو تیسا نور سایا ہے. الصلاۃ السلام علیکہ یا حبیب اللہ. جس نے آمد رسول اللہ ہی اللہ جس نے آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ. میرے دادا آئے جھومو سب کے مولا آئے جھومو سب کے دادا آئے جھومو میرے مولا آئے جھومو.
سرکار نبیوں کے سردار مالک و مختار سب کے ہیں غم خوار مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا 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 یا مصطفیٰ مرحبا 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 فخر فلک فخر زمین آیا ہے. ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے بچے، ایک ایک سال کے بچے جھوم رہے ہیں، کیا بات ہے. بعض 3 سال کے بچے بچیاں وہ صاف بول رہے تھے. سبحان اللہ. ان کو تو ان کے ماں باپ کو چاہیے کہ نیت کر لیں کہ عالم دین بنائیں گے. ان کا ذہن اس کا مطلب اچھا ہے، زبان میں گرے نہیں ہے، اب بھی سے 3 سال کی عمر میں صاف بول رہے. نعرے وغیرہ لگائے انہوں نے، اشعار پڑھے صاف صاف. سبحان اللہ. اللہ برکت دے. جب یہ دیکھتے رہے تو ماشاءاللہ بھی بولتے رہے اسکرین پر دیکھنے والے، اگر نظر نہ لگے بچوں کو. بڑے پیارے پیارے بچے، کوئی جھوم رہا تھا کوئی گھوم رہا تھا. بچہ گھومتا ہے تو بھی بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ. اللہ برکت دے، سب کو بعمل عالم دین بنائے، دعوت اسلامی کے مخلص مبلغ بن جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. SMS کے ذریعے سوال یہ کیا گیا ہے کہ لوگ شادی کرنے کے لیے لڑکے کا بیک گراؤنڈ چیک کرتے ہیں، اور اس میں جو چیک کرتے ہیں اس میں ان کا ویل سیٹ ہونا، کہ کماتا کیسا ہے، رہتا کیسا ہے، لیکن اس کا عمل یعنی دینی طور پر اس کو چیک نہیں کرتے. اس تعلق سے آپ کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ ظاہر سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی سیرت کیسی ہے. ہمارے یہاں صرف صورت دیکھتے ہیں اور آمدنی دیکھتے ہیں، چاہے وہ ہے نا کہاں کا حلال کہاں کا حرام، جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجیے، چاہے اس کی آمدنی سود کی ہو، رشوت کی ہو، آمدنی ہونی چاہیے. یہ غلط ترکیب ہے. اس کی سیرت دیکھی جائے کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، رمضان شریف کے روزے رکھتا ہے کہ نہیں، اس کے مطلب ہے کہ صحبت کس طرح کے دوستوں کی ہے وغیرہ وغیرہ. کردار معلوم کرنا چاہیے، سیرت بھی معلوم کرے. بے شک صورت بھی دیکھنی چاہیے، خاندان بھی دیکھنا چاہیے، لیکن سیرت کو مائنس نہیں کرنا چاہیے. خالی ہے کہ شراب پیتا ہے تو پسند نہیں کریں گے، جوا کھیلتا ہے تو پسند نہیں کریں گے دنیاوی طور پر، ہیروئن پیتا ہے تو نہیں پسند کریں گے. یہ دنیاوی خرابیاں اس کو سمجھتے ہیں، اگرچہ یہ دینی خرابیاں بھی ہیں لیکن صرف اتنا دیکھتے ہیں. اب ہیروئن پیتا ہے وہ غلط کرتا ہے، 100% غلط کرتا ہے، لیکن جو نماز نہیں پڑھتا وہ اچھا تھوڑی کرتا ہے. یہ بھی کوئی کم غلط تو نہیں ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا نو پرابلم، ہیروئن پیتا ہے تو پرابلم ہے. میں یہ کہوں گا کہ دونوں ہی پرابلم ہے، نہ بے نمازی ہو نہ ہیروئنی ہو. نمازی ہونا چاہیے اور ہیروئنی بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یوں اگر دیکھیں تو اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. خالی پیسے نہ دیکھیں. حضرت شیخ کرمانی رحمت اللہ علیہ، کرمان کے بادشاہ تھے رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک نوجوان کو اس طرح مطلب وہ غریب نوجوان تھا، اس سے شادی کروائی. جب رخصت ہو کر بیٹی اس کے گھر آئی، بیٹی نے دیکھا کہ ایک روٹی سوکھی رکھی ہوئی ہے، تو اس نے کہا کہ یہ میں جاتی ہوں، میں یہ کہاں گئی. تو اس نے کہا میں تو پہلے ہی سمجھتا تھا کہ اب ایک شہزادی مجھ غریب کے گھر کہاں رہے گی. تو بولا نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی، سوکھی روٹی دیکھ کر کہ یہ سوکھی روٹی کھلائے گا مجھے، بلکہ مجھے تو یہ افسوس ہے، میں سمجھا کہ میرے باپ نے کسی نیک و متوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنے والے شخص سے نکاح کروایا ہوگا، مگر یہ روٹی اس نے تو کل کے لیے بچا کر رکھی ہے. یہ مجھے اس لیے مطلب میں پریشان ہوئی ہوں. یہ مطلب یہ ان دنوں ایسی بھی سوچ تھی. ہمارے ہاں تو نوٹ، چاہے سود ہو، رشوت ہو، حرام ہو، چھینا ہوا مال ہو، نوٹ ہے تو سمجھے ایک سے ایک لڑکی اس کے لیے. اور جو بیچارہ غریبڑا ہے، روز کماتا روز کھاتا ہے، اس کے لیے آسانی سے اس کو رشتہ نہیں ملتا. اب جس طرح کوئی مذہبی ہے
उस मजहबी है, दाढ़ी वाला, इमामे वाला, उसके लिए भी खानदान में आजमाइशें होती है। तो जिस तरह जहेज या रकम ना होने की वजह से या गुर्बत की वजह से बेटियां घरों में है ना, ये शादियां महंगी हो गई हैं तो नहीं हो पाती शादी, इसी तरह हमारे कई ऐसे नौजवान की शादियां नहीं हो रही जिनकी आमदनियां इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ज़्यादा आमदनियों की आज माशरे में डिमांड की जाती है। जी जी। तो उसकी वजह से नौजवान भी शादी नहीं कर पा रहे। एक तो उनको नहीं मिलती लड़की, बेचारे परेशान हैं, शिकायतें मिली हैं। बिल्कुल है, ऐसा हो रहा है। ये नया अब तो फिर भी दावत इस्लामी से काफी मतलब फायदा हुआ है कि शायद सैकड़ों हजारों घर बस गए, वरना पहले तो बिल्कुल ही, मैंने दाढ़ी रखी थी ना, मुझे पता ना, मेरा रिश्ता नहीं होता था, दाढ़ी थी, इमामत करता था और भी अपना कुछ छोटा मोटा काम कर लेता था। मैं भीख मांगे नहीं खाता था, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद की रोटी भी नहीं खाता था। तो मैं फिर भी था, तो अवाम तो मौलाना बोले, मौलाना हाथ चूमते थे मेरा उस वक्त भी, लेकिन देता कोई नहीं था। मुझे पता है कि किस तरह मेरी किन मुश्किलात से गुजर कर मेरा घर आबाद हुआ है, इस वजह से कि मैं मजहबी आदमी था, तो नहीं देते थे। तो ये अब खैर वो दावत इस्लामी में जो लोग आ गए ना, इनमें तो फर्क तो पड़ा है। अब तो माशाल्लाह यानी कि दाढ़ी वालों की, इमामे वालों की, मदनियों की, अपने जो मदनिया इस्लामी बहनें होती हैं उनकी, ये घर आबाद हो रहे हैं अल्लाह की रहमत से। पहले माहौल दावत इस्लामी से पहले हमारे यहाँ तो कराची में तो मैंने देखा है कि बहुत आजमाइश थी दाढ़ी वालों के लिए, और दाढ़ी वालों का मुझे पता भी नहीं था अतराम में दाढ़ी वाले थे कहाँ। शुरू की बात कर रहा हूँ, वो थे तो नए नए कोई मेरे साथ शामिल हुए थे, वो दाढ़ी रख लेते थे। मैं कोशिश, इनफरादी कोशिश मेरा पुराना शौक है या मेरा तरीका कार है, एक एक पर मैं समझे मेहनत करता था, घर से बुला के लाता था, इनको ले जाता था, खिलाता था, पिलाता था, समझे, समझाता था। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह एक एक करके वो जमा होते थे मेरे पास। तो ये जमा होते होते फिर दावत इस्लामी बन गई, यूं समझ लो। तो इनफरादी कोशिश तो करनी चाहिए सबको, कोशिश करने से फायदा तो होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अब रिवायत में कुछ इस तरह मैंने पढ़ा है कि तुम्हें अगर कोई मुत्तकी लड़का, नेक लड़का मिले जिसके अखलाक अच्छे हों, तो उससे अपनी लड़की की शादी करवा दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ज़मीन में फितन और फसाद बर्पा होंगे। मुफ्ती साहब अलैहि रहमान है, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला ने इसके तहत लिखा है कि इसमें अखलाक के साथ साथ उसका नान नफ़का भी बिल्कुल देखना चाहिए कि वो घर चला सकता है नहीं चला सकता। लेकिन फितना और फसाद का जो वहाँ जिक्र हुआ कि ये ना होने की वजह से जो माशरे में बेहयाई और बदकारी फैलने का जो चांस है, और उसकी वजह से जो कत्ल और गारत गिरी होगी, तो ये इसकी तरफ इशारा था। मैं मैसेज में अक्सर लोगों को शुक्रिया या थैंक यू लिख देता हूँ, तो उसके जवाब में वो ये कहते हैं कि अपनों को शुक्रिया कहने की ज़रूरत नहीं। तो इसके बारे में आप क्या फरमाते हैं? शुक्रिया। मस्जिद में अपनों को ये मैसेज में जैसे किसी ने कोई अच्छा काम किया, इनके साथ भलाई की है, तो कहते हैं शुक्रिया, थैंक यू। तो वो लिख के आगे से भेजते हैं कि भाई अपने ही हैं, अपनों को शुक्रिया कहने की क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है कहने की। हमको भले शुक्रिया कहा, इन्होंने अपने सवाल में आखिर में शुक्रिया कहा। जी जी कहा है। ये तो ऐसे ही चुटकुला बन गया। तो शुक्रिया अदा करना तो बहुत अच्छा काम है। ये तो हदीस पाक पर अमल की नीयत हो तो सवाब भी मिलेगा। मन लम यशकुरिन नासा लम यशकुरिल्लाह, ये हदीस पाक है कि जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो खुदा का भी शुक्र अदा नहीं करता। तो इसलिए वो शुक्र अदा करना चाहिए लोगों का, जो एहसान करते हैं उनको शुक्रिया कहना। उर्दू में शुक्रिया कहते हैं और इंग्लिश में थैंक यू कहते हैं। नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच। लेकिन बेहतर वो शुक्रिया कि जिसमें यह कहा जाए जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह आपको बेहतरीन सिला, बेहतरीन बदला दे। लेकिन थैंक यू का तो भी कोई हरज नहीं है। एक और हदीस पाक तिरमिजी शरीफ में, अच्छा ये वही है कि तिरमिजी में उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु से
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके साथ एहसान किया गया और उसने एहसान करने वाले के लिए ये कहा जज़ाकल्लाहु खैरा, तो पूरी सना कर दी। तो जज़ाकल्लाहु खैरा कहना ये मुनासिब है, अनसब है, मुनासिब तर है, लेकिन थैंक यू कहने में भी कोई मुमानत नहीं है, शुक्रिया कहने में भी कोई हर्ज नहीं है। तो हमारे मुसलमानों में ये राइज है, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो कहते हैं ना सामने है शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये भी आजिज़ी के तौर पे कह रहे होते हैं, इस पर भी क्या हुक्म लगेगा? अरे यार घर की बात है तो शुक्रिया की क्या बात है, यूं करके ये बोलते हैं, तो इसमें भी हर्ज तो नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जी अल्लाह सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि मेरे वालिद 2 माह पहले इंतकाल हो गया था उनका, तो मेरी वालिदा इद्दत में है। हमारे ख़ानदान में शादी है एक हमारे चचा के बेटे की, तो क्या मेरी वालिदा पर्दे के साथ उस शादी में शिरकत कर सकती हैं? जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह पाक आपके वालिद मुहतरम को गरीक रहमत फरमाए, बेहिसाब मग़फ़िरत करे, आप सबको सब्र अता फरमाए। ये उज़्र नहीं है इद्दत से बाहर निकलने का, ना शादियों में औरतों के जाने का कोई मतलब फजाइल है। आजकल तो पटी पड़ी हैं औरतें, लेकिन ये उज़्र नहीं है, इद्दत में से निकल नहीं सकती इस काम के लिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सैयदी अमीर अहले सुन्नत, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी आल औलाद को की अल्लाह खैर फरमाए। सैयदी अमीर अहले सुन्नत, ये इरशाद फरमा दीजिए कि लड़के तो महफिल वगैरह में जाकर जुलूसे मिलाद में शिरकत करके सरकार की आमद की खूब खुशियाँ मनाते हैं। हम बच्चियाँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियाँ कैसे मनाएं? सल्लल्लाहु माशाअल्लाह। छोटी बच्चियां जो होती हैं वो भी तो जुलूस में, अगर 3, 4, 5 साल की है वो तो जाती हैं जुलूसों में, महफिलों में भी जाती होंगी। ताहम ये कि इस्लामी बहनें या बड़ी बच्चियां है ना, ये तो नहीं जा सकती। जो जाती हैं वो भी गलत करती हैं मर्दों में। तो जुलूस के जरिए ही जश्न विलादत नहीं मनाया जाता। हमारे यहाँ जुलूस का एक ट्रेंड है, दीगर ममालिक में हर जगह थोड़ी है तो जुलूस निकलते हो, सब जगह नहीं निकलता, पता भी नहीं होता। तो सब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, जुलूस नहीं है। महफिल भी हमारे यहाँ जिस तरह होती हैं, जोरदार रोडों पे नात ख्वानियाँ और महफिल नात, इस तरह वहाँ नहीं होती है, ना इस तरह सजावटें होती हैं जिस तरह हमारे यहाँ होती हैं। फर्क है मतलब मनाने में। तो बहरहाल ये घर में मतलब रहें, पर्दे के अंदर रहें और दुरूद सलाम पढ़ें। असल तो मतलब घर सजाना ये अपनी जगह पर है, गलियां सजाना अपनी जगह पर है। अपना मतलब है कि दिल सजाए इश्क रसूल से, खाली जाहिरी चरागा काफी नहीं, अपने अंदर भी चरागा हो, बाहर भी चरागा हो, औरत का पर्दे की सूरत में चरागा हो, शरई पर्दा करे वो हर हाल में करे, हर जगह करे, हर रोज करे। इस्लामी भाई भी चरागा पूरी बिल्डिंग सजा दी, लेकिन चेहरा जो सजा हुआ नहीं है आका की सुन्नत से। तो इस सारी बिल्डिंग सजाने से, सारा मोहल्ला सजाने से ज्यादा अहम यह कि अपना चेहरा आका की सुन्नत से सजा ले। अगर ये बिल्डिंग नहीं सजाता, मोहल्ला नहीं सजाता, गुनाहगार नहीं है। ये चेहरा नहीं सजा रहा तो गुनाहगार हो रहा है। तो एक मुट्ठी दाढ़ी वाजिब है, एक मुट्ठी कम से कम ये वाजिब है, और एक मुट्ठी दाढ़ी शेव करवाना या एक मुट्ठी से छोटी कर देना काट के, ये हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। तो ये समझने की बातें हैं। गलियां भी सजानी है, रोड भी सजाने हैं, मकान भी सजाने हैं, दुकान भी सजानी है, शरीयत के दायरे में रहकर ये खूब सजाना है। और अपने आप को भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से सजाना है। अपने आमाल नामे को भी
फराइज वाजिबात और सुन्नतों पर अमल करके नेकियां करके सजाना है। खाली गलियां सजाने पर वो डन नहीं करना, दोनों सजाना है, अंदर बाहर सब सजाना है, तो फिर सच्ची सजावट है इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। फैज़ान मदीना की एक अपनी एक शान है माशाअल्लाह, और जो नूर वहाँ पे बरसता है, क्योंकि हर वक्त अल्लाह का जिक्र और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिक्र होता है और जो इबादत होती है वो कहीं और देखने में नहीं मिलती। फैज़ान मदीना में जब आते हैं तो बस यूँ समझ लें कि रूह खुश हो जाती है, दिल खुश हो जाता है। मैं मौलाना इलियास कादरी साहब से ये दरख्वास्त करूँगा, अर्ज़ करूँगा कि 12 रबी अव्वल का जो महीना है, अभी मिलाद का जो तरीक़ेकार है, किस तरीके से हमारी जो घर की जो ख़वातीन है किस तरीके से अरेंजमेंट करें। ये भी शरीयत पर अमल करें, जिक्र और दुरूद की कसरत करें और शरई पर्दा अपने ऊपर नाफिज करें, खूब नेकियां करें और घर में अच्छे अच्छे खाने पकाकर अल्लाह की रिजा के लिए अपने घर के अफराद को खिलाएं, और अल्लाह तौफीक दे तो न्याज करें। न्याज करने पर तो कोई मसला ही नहीं है, घर में खूब पकाएं, 12 तरह की डिशें पकाएं, बेशक न्याज की नीयत से और इसाले सवाब करें, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजर करें, पेश करें, घर अपने मोहल्ले में पड़ोसियों में ये पहुंचाएं। इंशाअल्लाह इसका भी यूं भी जश्न विलादत ईसाई बहनें मना सकती हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जैसा कि हबीबा बाई, बाई नाम का मतलब क्या है, ये इरशाद फरमा दें। क्या ये नाम बाई किसी भी नाम के साथ लगा सकते हैं, जैसे कस्बा बाई या आमना बाई? बराए करम जवाब इरशाद फरमा दें। भाई हमारे यहाँ मतलब ये कि ताजीम का लफ्ज है, कि एहतराम, जैसे भाई इकबाल भाई, ये बाई हो गई, हबीबा बाई, अब्दुल हबीब भाई, कोई हरज नहीं इसमें, यह एहतराम का लफ्ज है। बाई हमारी मेमन में बाई बोलते हैं, अब कम बोलते हैं, पहले ज्यादा बोलते थे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। गुजराती में भी बाई बोलते हैं। आपसे सवाल यह है कि नमाज की हालत में अक्सर लोग जो है ऊपर से शलवार को फोल्ड कर लेते हैं और पैंट को जो फोल्ड कर लेते हैं, तो इसमें क्या हुक्म है नमाज की हालत में? और दूसरा ये है कि बहुत से अगर लोग को ये भी देखा गया है कि अगर उनसे ये कहा जाए कि यार ये गलत है, तो बोलते हैं कि मैं नमाज की हालत में, इससे पहले से मैं ऐसे ही था, नमाज की हालत में नहीं किया है। तो नमाज की हालत से पहले करना है कैसा है, और नमाज में क्या करना है? असल वो नमाज में फोल्ड नहीं करना, इसका माना यही होता है कि नमाज से पहले ये फोल्ड ना हो। गलतफहमी होती है, सही है, हो सकती है। पहले भी मैंने ये सुना है कि ये तो हम नमाज के दौरान थोड़ी करते हैं। तो नमाज में फोल्ड नहीं होना चाहिए, यूं अगर बयान किया जाए तो अनसब। नमाज से पहले अगर जैसे कि बाद लोग पाइचे चढ़ाते हैं बाकायदा, बल्कि ये भी सुना है कोई बड़े बूढ़े ऐलान करते हैं कि पाइचे ऊंचे चढ़ा लो, ये बेचारे मतलब इनको मसाइल नहीं पता होते। तो नमाज में ये फोल्ड करना जो है ना, ऊपर से घुरसना या नीचे से पाइचे फोल्ड करके टखनों से ऊपर ले जाना, ये जायज नहीं है, मकरूह तहरीमी है। नमाज इससे मकरूह तहरीमी होगी। अल्लाह पाक की बारगाह में तो मुअज़्ज़ब अंदाज में बंदा हाजिर हो। अब ये देखिए कि आप इसको सोचिए, ये अल्लाह की जन्नत में तो अब ये कर रहे हैं, और इस पर जिद भी बात लोग करते हैं। अल्लाह के बंदो सोचो तो सी, आप यहाँ तो ये कर रहे हैं, ससुराल में आपकी दावत है, क्या पाइचे चढ़ा के जाएंगे आप? सोचे आप, यूं खुड़स के जाएंगे कि एक इधर से उभरा हुआ है, उधर से उभरा हुआ है, पाइचे क्यों फोल्ड किए हुए हैं, कहाँ से भाग के आ रहे हो? तो नहीं करेंगे, अंडरस्टूड है, कहीं भी नहीं करेंगे जाकर, तो नौकरी की जगह भी नहीं करेंगे, कहीं भी नहीं करेंगे आप इस तरह। तो खाली नमाज में ही क्यों जिद करते हैं? तो ये सिलाई इसी तरह हो कि टखनों से ऊपर रहे। अब अगर किसी के नहीं है टखनों से ऊपर सिलाई, तो सिर्फ खींच कर ऊपर हो जाती है, तो कर दिया तो ठीक है,
फोल्ड नहीं करना है, और नमाज के दौरान खींचा खांची भी नहीं करनी है। नमाज से पहले जो करना कर लिया। तो अगर नहीं होता तो फिर जो टखने से नीचे ये पड़ी है तो नमाज मकरूह तंज़ीही है, और अगर तकब्बुर के नियत से है तो मकरूह तहरीमी ने नाजायज है। तो तकब्बुर की नियत से तो कोई भी नहीं करता होगा। वैसे भी ये पांचे ऊंचे होना खाली नमाज के अलावा भी मर्द के पांचे टखनों से ऊंचे ही होने चाहिए, और औरत के लिए तो ऊंचे का मसला ही नहीं है, औरत के नीचे होने चाहिए, टखने छुपे हुए होने चाहिए। तो मर्द के लिए कि ये ऊंचे हों, हर वक्त ऊंचे हो, जब ये पहनता है आम हालात में भी, गलियों में बाजारों में जहाँ भी जाता है, इसके पांचे ऊंचे होना ये सुन्नत है। अब इस सुन्नत को आमतौर पर लोग तवज्जो नहीं देते, खाली नमाज में समझते हैं कि होनी चाहिए, हर वक्त होनी चाहिए। और जो बेचारा सुन्नत पर अमल करता है, लोग बाजों का उसका मजाक उड़ाते हैं। ये भी है माहौल, ये गलत है ना। ऐसा सुन्नत पर अमल करना चाहिए, सुन्नत में अजमत है। दावत इस्लामी वालों की एक तादाद आपको मिलेगी जो ऊंचा रखते हैं, और जो बेचारे कभी कभी आते होते हैं तो ये नीचे रखते हैं। उसे इनको शायद मसाला नहीं पता होता या तवज्जो नहीं होती, या बहरहाल ज़हन तो बनता है। तो दावत इस्लामी का पक्का होगा ना, मुबल्लिग होगा या जिम्मेदार होगा, और पक्का बाअमल होगा। बाद मुबल्लिग भी खाली बोलने के होते हैं, अमल करने के नहीं होते, ये मिक्स होता है मामला। तो वो फिर नीचे उनके मिलेंगे, और जो पक्का होगा बाअमल तो उसके ऊपर मिलेंगे पांचे टखनों से। अब ये चेक करके तो मसले मसाइल नहीं करना आपस में, अपना चेक करके सेट कर देना। अब आप बोलोगे कि मैं आइंदा सिलाऊंगा तो ख्याल रखूंगा। अल्लाह के नेक बंदे, अगर दर्जी ने जेब आगे के मतलब पीछे लगा दी, या ये बटन, जेब तो कहाँ रखते हैं आजकल, तो बटन, अगर ये बटन तो आगे होते हैं, इसके मतलब पीछे से लगा दिए, तो आप वो पीछे यूं लगा लिया करना, ये सारा सपाट हो आगे। दूसरा जब सिलाएंगे देखेंगे वो यहाँ लगवाया करेंगे, कोई नहीं करेगा, एक बार भी नहीं पहनेंगे, और पहनना भी नहीं चाहिए, अरे मजाक उड़ेगा। तो जब ये करते हैं तो ये टखनों से इसको थोड़ा दर्जी को देंगे 5-25 रुपए, वो ऊपर कर देंगे कटिंग करके, सही हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। पैसे ऊंचे हो जाएंगे, वो कर देगा। पैसे देने से क्या नहीं होता, नया सिल जाएगा। ये बड़े भाई को दे देना, बड़े भाई को ये पूरा हो जाएगा। किसी पड़ोसी को दे देना जो बड़ी साइज के, अगर अल्लाह ने आपको ने रकम दी। आजकल तो ये है, मतलब लोग दे रहे हैं, वो थोड़ा टिप टाप की आदत पड़ गई है, बिल्कुल एक दाग भी पड़ गया तो गया, या थोड़े मत अरसा हो गया कि अब इसकी शाइनिंग जाती रही, तो ये पैसे बहुत हैं लोगों के पास, जिनके पास है तो ये दे देते हैं। दूसरों को जो बेचारे गरीब होते हैं उसको अपना लेते हैं, पहन लेते हैं। ये भी आजकल चला हुआ है, समझ में नहीं आ रहा लेकिन हो रहा है ऐसा। अल्लाह हमें सादगी नसीब फरमाए। और सुन्नतों भरा जो लिबास है वही उम्दा है, वही टिप टाप का है, वही खूबसूरत है, वही हसीन है जो अल्लाह और रसूल को पसंद है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। कराची से इकबाल अत्तारी बात कर रहा हूँ। हजरत साहब से ये सवाल है कि हजरत साहब ने फरमाया कि हेडफोन लगाना नुकसानदेह, तो एक रिक्वेस्ट है कि इस बारे में भी थोड़ा बताएं। जैसे मैं गुलिस्तान जौहर से डेली डिफेंस जाता हूँ और रास्ते भर में मैं अपने कान में लगा के और एक रूटीन बनाया, 100 इस्तग़फ़ार, 100 दुरूद शरीफ और ये सब एक रिकॉर्ड किया हुआ, वो सुनता हुआ जाता हूँ। इस तरह 9 किस्म के जिक्र अस्कार है, वो सुनता हुआ जाता हूँ और सुनता हुआ वापस आता हूँ। दोनों रास्ते मेरे इस तरह कट जाते हैं। तो ये सुनने के लिए और कोई रास्ता तो है नहीं, क्योंकि मैं बाइक पर होता हूँ, तो इस पे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो मेरी इसमें इस्लाह फरमाएं, जज़ाकल्लाह खैर। मैंने कोई कानून तो लागू नहीं किया कि हेडफोन नहीं लगाना है, लोग लगा ही रहे हैं, समझे, आप भी लगा रहे हैं, कानों को नुकसान तो होगा, समझे। मैंने नुकसान बताया कि इसका नुकसान है, तो आप ऐसा करें, हेडफोन को छुट्टी करा दें, सुनने को छुट्टी कर दें, पढ़ना शुरू कर देंगे सारे अस्कार, तो और सवाब, वाकई सवाब मिलेगा। सुनना सवाब तो है लेकिन पढ़ना ज्यादा सवाब मिलेगा ही। जिक्र अस्कार जहाँ पढ़ने के हैं वहां सुनने से गुजारा भी नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
سے یہ سوال ہے کہ ہم صدقے کا بکرا قبرستان میں پھینک سکتے ہیں یا نہیں، یا پھر سب صدقہ کیسے دیا جائے یہ بتا دیں۔ صدقے کا بکرا قبرستان میں پھینک سکتے ہیں؟ توبہ استغفر اللہ، یہ کسی بابا جی نے بتایا، وہ بتاتے ہیں اس طرح بابا جی، تو یہ پھینک دینا، کاٹ کے وہ پھینک دیتے ہیں، دفن کر دیتے ہیں معاذ اللہ، تو یہ توبہ حرام ہے، اس طرح مال ضائع کرنا، تو اس طرح نہ کیا جائے۔ صدقے کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے، صدقہ یعنی راہ خدا میں دینا ہے نا، تو اب یہ کہ جان کا صدقہ دینا ہے تو بہتر یہ کہ ذبح کر کے غریبوں کو دے دے، بانٹ دے، کسی ایک غریب کو اٹھا کے دے دے، کوئی بات نہیں، اور اگر کوئی مالدار بھی لے گیا تو کوئی بات نہیں، نفل صدقہ جو ہے مالدار بھی اگر کھا لے گا تو حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ کہ غریبوں کو دیا جائے۔ اب بعض جگہ غریب ملتے ہی نہیں تو کیا کریں، ہاں نہیں ملتے غریب، پتہ نہیں چلتا، جس کو غریب سمجھتے ہم سے زیادہ مالدار ہوتا ہے بعض اوقات، تو یہ کہ بہرحال نفل صدقہ دوسرا کھا لے یا دوسرے کو دے دیا جائے تو گناہ نہیں ہے اس میں، مگر وہی بات ہے کہ اصل وہی ہے کہ یہ صدقہ غریبوں کو دیا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک سوال ہے کہ کوئی اہم چیز گم ہو جائے، اس کے مل جانے کا کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ یا رقیب، کوئی چیز گم ہو گئی ہو تو بکثرت پڑھے، انشاءاللہ الکریم مل جائے گی۔ یا جامع، کوئی چیز گم جائے تو بکثرت پڑھا کرے، انشاءاللہ الکریم مل جائے گی۔ کوئی چیز اگر ادھر ادھر رہ گئی ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر تلاش کی جائے تو انشاءاللہ الکریم مل جائے گی، ورنہ غیب سے کوئی اور عمدہ چیز عطا ہوگی۔ سورۃ الضحیٰ والضحیٰ واللیل والی سورت 7 بار پڑھے، انشاءاللہ الکریم گما ہوا آدمی یا چیز مل جائے گی۔ اور بھی اس کے اوراد ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آیا ہے کیا انسان جاگتی آنکھوں سے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ عوام کے لیے خواب میں، خواص کے لیے جاگتی آنکھوں سے، جیسے کہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ ان کو 75 ٹائم 75 بار جاگتی حالت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا تھا۔ اس سے بھی بزرگوں کے اقوال ملتے ہیں کہ ہر وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے تھے، یا کوئی حدیث سنتے تھے تو سرکار ان کو نظر آتے تھے۔ اگر وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر خوشی کے آثار دیکھتے تھے، بشاشت جس کو بولتے ہیں، تو سمجھ جاتے تھے کہ یہ ارشاد درست ہے، اور اگر بھویں سکیڑتا ہوا اور ناگواری کے آثار مبارک چہرے پر وہ دیکھتے تھے تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ ارشاد سرکار اس سے منع فرما رہے کہ میرا نہیں ہے۔ اس طرح کے بھی اقوال ہیں بزرگان دین کے۔ تو یہ خاص ہوتے ہیں جن پر خاص کرم ہو جائے۔ بعض اوقات جو عوام نظر آتے ہیں ان کو بھی بیداری میں زیارت کے واقعات تو ہیں کہ ہوئی ہے زیارت۔ اب جن پر کرم ہو جائے، اصل یہ ہے ادھر سے، ہماری طرف سے کیا ہوتا ہے، ہم لوگ کس قابل ہیں؟ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے جو رخ تیرا ادھر ہے۔ سرکار کی نظر کرم ہم پر ہے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔
जो 3 मरतबा पढ़े, जिसने 3 मरतबा पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलके पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाह रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाह रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाह रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम सल्लु अलल हबीब। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस से खैर और मजलिस से जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलकर पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। रबीउल अव्वल शरीफ में जो 12 दिन के रोजे की मदनी तहरीक है तो वो सुन ले, इनकी नीयतें, फिर इंशाल्लाह हफ्ते हफ्ते 12 रबीउल अव्वल के बाद भी नीयतें जो आती रहेंगी उसका मैं बयान मैं करूंगा या जो भी कर दिया जाएगा यहाँ से इंशाअल्लाह करीम। मुल्क व बैरून मुल्क से 7 रबीउल अव्वल शरीफ 1443 हिजरी मुताबिक 14 अक्टूबर 2021 की कारकर्दगी। 12 रोजों की नियत करने वाले इस्लामी भाइयों की तादाद 9495, इस्लामी बहनों की तादाद 5787। 7 रोजों की नियत करने वाले 15192 यानी 15,192। इस्लामी बहनों की तादाद 6,105। 3 रोजों की नियत इस्लामी भाई 33,775। इस्लामी बहनें 15,087। अब टोटल हुए इस्लामी भाई 58,462। इस्लामी बहनें 26,979। तो यूं आधे से भी कम रह गई इस्लामी बहनें। शायद कारकर्दगी जमा करने में रुकावटें हैं, तो हिम्मत करें, कारकर्दगी जमा करें। और इस्लामी भाइयों से शुरू में ये इस्लामी बहनों के ज्यादा थे, फिर इस्लामी भाई मेरा ख्याल है वो आगे बढ़ गए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये सवालात जो किए गए थे कल, उनके जवाबात। सवाल नंबर 1, उलुल अज़्म अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम में से 2 नबियों के नाम बताइए। जवाब, उलुल अज़्म अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम ये हैं। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام۔ سوال نمبر 2، کس بدبخت شخص کو اس امت کا فرعون کہا گیا؟ جواب، ابو جہل کو۔ سوال نمبر 3، اسلام کے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کا نام بتائیے۔ جواب، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت خورشید عطاریہ، عبد الرحمن ممتاز ملتان شریف، رضوان عطاری ڈیرہ غازی خان، فرحان عطاری کراچی، بنت الطاف حسین لاہور، فرقان عطاری دھرن والا، محمد سلمان عطاری مامو کانجن۔ تمام درست جواب دینے والوں میں سے قرعہ اندازی کے ذریعے نکلنے والا نام بنت خورشید عطاریہ۔ ان کو تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا، جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا۔ ناظرین سے مزید سوالات یہ کل بھی عرض کیا تھا، لکھ کر یہ بھی ڈال دیں اس میں کہ کل عشاء کی اذان تک ٹیکسٹ کی صورت میں جوابات بھیجیں۔ اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں۔ ناظرین سے سوالات۔ سوال نمبر 1، امام غزالی رحمت اللہ علیہ کس صدی ہجری کے مجدد ہیں؟ سوال نمبر 2، شفا شریف کس بزرگ نے لکھی ہے؟ سوال نمبر 3، اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو کون سا وظیفہ بکثرت یعنی زیادہ پڑھنا چاہیے؟ تو جو بیان کیے گئے ان میں سے کوئی ایک بتا دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گناہوں کو معاف۔ الہ العالمین ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہمیں گناہوں سے چھٹکارا نصیب فرما۔ اے اللہ پاک گناہوں سے نفرت ہو جائے، نیکیوں سے محبت ہو جائے، نیکیوں پر عمل کا جذبہ نصیب ہو، نیکیوں پر عمل کرنا نصیب ہو۔ مولا کریم ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ پاک کورونا کی بیماری دنیا سے چلی جائے، کورونا کے مریض بھی شفا یاب ہوں۔ رب کریم بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا فرما، مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، جن کی رقمیں پھنسی ان کے حقوق مل جائیں، بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو، بیٹیوں کے طلبگار بیٹیوں سے اور بیٹوں کے طلبگار بیٹوں سے مشرف ہو۔ رب کریم مظلوم قیدی رہا ہوں، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں نیک رشتے عطا ہوں۔ یا اللہ پاک جو مختلف دعاؤں کے لیے کہا کرتے ہیں، کہلواتے رہتے ہیں، مدنی چینل کے ذریعے فیس بک کے ذریعے بھی پیغامات جو دیتے ہیں دعاؤں کے لیے، سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور۔ مٹا میرے رنجو
الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی مٹا میرے رنجو علم یا الہی عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا ہے سیاہ میں بدمست ہم یا الہی میرے سر پہ عیسیٰ کا بار آہ والا میرے سر پہ عیسیٰ کا بار آہ والا بڑا جاتا ہے دم بدم یا الہی بڑا جاتا ہے دم بدم یا الہی مٹا میرے رنجو علم یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی صدا کے لیے ہو جا راضی خدایا ہمیشہ ہو لطف و کرم یا الہی خدایا پورے خاتمے سے بچانا خدایا پورے خاتمے سے بچانا پڑھو کلیمہ جب نکلے دم یا الہی پڑھو کلیمہ جب نکلے دم یا الہی مٹا میرے رنجو علم یا الہی چلے قبر میں سب اکیلا لٹا کر کرم یا الہی کرم یا الہی نکیر نبی قبر میں آ چکے گئے کرم یا الہی کرم یا الہی آمین بجاہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا شمی یا مطلبی یا رسول اللہ
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات جشن میلاد النبی ہے نور کی چادر تنی ہے جشن میلاد النبی ہے نور کی چادر روشنی ہی روشنی ہے روشنی ہی روشنی ہے دھوم ہر جانب مچی ہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. آمنہ بی بی کے گھر پر نبیوں کا افسر آمنہ بی بی کے گھر پر آ گیا نبیوں کا افسر جھک گیا ہے کفر کا سر جھک گیا ہے کفر پڑ گئی ہے دھوم گھر گھر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون
वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, शाह हर दो सरा सबसे आखिरी नबी, ताजदार अंबिया सबसे आखिरी नबी, हे हबीब किबरिया सबसे आखिरी नबी, हे शफीउल वरा सबसे आखिरी नबी, हे हमारा नजरिया सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का सबसे आखिरी नबी, औलिया का नजरिया सबसे आखिरी नबी, ताजदार अंबिया सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, शाह हर दो सरा सबसे आखिरी नबी। सरकार नबियों के सरदार मालिक मुख्तार सबके हैं गमखार सबके हैं गमखार मरहबा 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 या मुस्तफा मरहबा 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 या मुस्तफा मरहबा मरहबा मदनी मुज़ाकिरा, मदनी मुज़ाकिरा।